Good morning, students. So, in previous classes, we started the new topic in the last class, that is coefficient. Okay. So, we have done what are coefficients, and we have also done question number 1 of exercise 5.2 related to the coefficient of a factor in a term for the algebraic expression. Okay. So today we will start with question number 2 of exercise 5.2. In question number 2 you have to write constant terms. Okay, some algebraic expressions are given to you and you have to write what are or which are the constant terms in those algebraic expressions. So the A part is minus 3x square minus 2x minus 27. Okay. So, yesterday I also told you how to differentiate between constants and constant terms. So, who will tell me what are constants in this algebraic expression? Constants क्या है इस algebraic expression में? बेटा constants. Turn off your speaker. I said turn off your speaker and tell me through the message only. Yes, stop screen presenting. Okay. Beta, you all are told me what is constant term. I am asking about constants only. इस algebraic expression में कितने constants हैं? आप सभी मुझे सिर्फ constant term बता रहे हैं, constants नहीं बता रहे हैं. Yes, Anika, only minus 3 is there. Only minus 3 is the constant. Only one constant is there. नो 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 बेटा 3 कांस्टेंट्स हैं. कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं ना. यस, वेरी गुड शौर्य. -3, -2 and -27, these three are constants present in this algebraic expression. Okay, yes, now you got it. -3, -2 and -27, these three are constants in this algebraic expression and the constant term is only -27. So constant term is -27. Okay, because it does not consist any variable. In first and second term you can see variables are present, but in the third term no variable is there, only constant exists in the third term. Hence -27 is the constant term in this given algebraic expression. Okay. C part, 7/5 plus 2/3 x square minus 15/16 x square. Okay, so which is the constant term in this? constant term क्या है बेटा यहाँ पे? Other students please give me answer fast. Only some students are giving answer. Yes, very good. 7/5 is the constant term because it does not consist any variable in this algebraic expression. Okay. Now, E part. U into V into W divided by 3. U into V into W divided by 3. Okay. So, tell me now what is the constant term in this? 3. Yes, no constant term present here. Constant term is equals to none. Okay. In this algebraic expression,
इन दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी नो कांस्टेंट टर्म इज देयर। बेटा ये जो 3 है इसे मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/3, ऐसा ही है ना ये, ठीक है। इट इज अ फ्रैक्शन 1/3। अब ये बताइए पूरी एक ही टर्म है ये, ठीक है। इस टर्म के अंदर ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं है, तो कोई अलग अलग टर्म्स तो नहीं है, ये पूरी एक ही टर्म है, ठीक है। उस टर्म में यू कैन सी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, u v एंड w, these three are variables present in this term. So if variables are present in this term, so how can it be a constant term? ये constant term नहीं होगी। आप लोग जो मुझे 3 बता रहे थे वो कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट इसमें 1/3 है, ठीक है। गॉट इट। कांस्टेंट भी अगर आप बताएंगे तो इसमें 1/3 है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज अ मोनोमियल, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हेंस इट इज अ मोनोमियल, ठीक है। टिल नाउ एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? So question 3 A part is x in 12x. What you have to do? Write the coefficient of x in 12x. Okay? ये जो आपको 12x है ये algebraic expression दिया हुआ है, इसमें x का coefficient बताना है। Okay? It's very simple. Yes, it will be 12. मैंने आपको कल भी बताया था algebraic expression में जिस फैक्टर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर टर्म में जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है। ये टर्म भी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, एक ही टर्म है इसमें, इट इज मोनोमियल। इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, तो x को हाइड कर दीजिए, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 12, सो 12 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x इन 12x। ओके गुड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट, minus x square in minus 7x cube. So he is asking in this question what will be the coefficient of minus x square in minus 7x cube. ठीक है, so क्या करना है हमें, coefficient of minus x square in minus 7x cube will be, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में, अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, -7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, एक्स क्यूब मीन्स एक्स रेज टू द पावर ऑफ 3 है ना, मीन्स एक्स इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। किसी भी बेस की पावर, नंबर या वेरिएबल की जितनी भी पावर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर या वेरिएबल खुद से उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पावर 3 है तो इट मीन्स एक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट बताना है, तो माइनस हटा दिया यहाँ से, माइनस रिमूव कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर यानी कि ये दोनों x ये भी यहाँ से रिमूव अगर हम कर देंगे तो सिर्फ क्या बचा, 7x। सो 7x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इन माइनस 7x क्यूब। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना चाहें तो आप वैसे भी देख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, इसमें से माइनस साइन हटाया, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो सिर्फ एक ही x बचेगा, तो 7 और एक x बच गया, यानी कि 7x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। गेट इट? एफ पार्ट, uv इन 5uv आपको क्या देखना है, उस फैक्टर से जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ द फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ uv इन 5uv। बस क्या करना है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसे उसमें से रिमूव कर दीजिए, तो जो बचेगा दैट विल बी कोफिशिएंट। uv का कोफिशिएंट पूछा है तो uv को अगर हम हटा दें इस टर्म में से तो सिर्फ 5w बचेगा, सो 5w विल बी द कोफिशिएंट ऑफ uv इन 5uvw। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ए पार्ट क्या है, 2y
7y, 3y and -2y. Okay, this is the A part of question number 4. ये 4 टर्म्स आपको दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी टर्म्स लाइक है और कौन सी टर्म्स अनलाइक है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के लिए द वेरिएबल एंड इट्स पावर मस्ट बी इक्वल। ठीक है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 4 टर्म्स में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है y, यहाँ भी 2y में y है, 7y में है, 3y में है और -2y में भी y एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल तो सेम हो गया। ठीक, नाउ यू हैव टू मूव टू इट्स पावर। पावर भी आप देख सकते हैं वेरिएबल की 1 है सभी में टर्म्स में, यानी कि इन चारों टर्म्स में वेरिएबल इज सेम एंड इट्स पावर इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, सो कैसी हो गई ये चारों टर्म्स? यस, दीज आर लाइक टर्म्स। क्या लिखोगे आप? दीज ऑल आर लाइक टर्म्स। ठीक है, क्योंकि अनलाइक टर्म यहाँ पे कोई सी भी नहीं है, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। दीज ऑल आर लाइक टर्म्स। ओके, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? आपको कांस्टेंट नहीं देखने हैं, सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर देखनी है। ओके, so this is all for today and your homework is exercise 5.2. Today's homework it is 9 September. Okay, question number 2b and d part. B and D part you have to do in homework, and question number 3 C, D and E, these 3 parts you have to do in the today's homework. Okay, question number 2 और 3 दोनों के ही question number 2 का B and D part करना है, question number 3 का C, D and E part करना है. Okay, thank you.